Today we are going to do a sample paper of class 9th of subject maths. I am Muskan and welcome to my YouTube channel Maths Measures. So let's start with the sample paper. So first of all we will solve section A of this sample paper. Okay, so let's start. So our first question is, that is the point 0 comma minus 4 lies on, हमें ये बताना है कि ये कहाँ लाई करता है. अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो 0 कॉमा माइनस 4 कहाँ लाई करेगा, कुछ समवेयर है यहीं लाई करेगा. तो इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y axis. So we can say the answer is, the options are, first of all let's check the options. On the negative direction of y axis, in quadrant third, in quadrant fourth, it is not in the quadrants, ये तो क्रॉस ही हो गए. On the negative side of x axis, x axis के नेगेटिव पे नहीं है, हमारे y axis के नेगेटिव पे है. So option number A is the answer. So let's move on the second question, that is an equilateral triangle. एक equilateral triangle है. Equilateral triangle is a triangle whose all the sides are equal. So हमें एक equilateral triangle दिया हुआ है और x root 3 is equals to root 48. We have to find the area of the triangle. As we know that area of an equilateral triangle is root 3 by 4 a square. But the side is given to us, that is 2x. So I can put it as 2x. So it is 2x square. So this is root 3 by 4 into 4x square. ठीक है, यहाँ से 4 से 4 cancel. This is root 3x square. But we know that x root 3 is equals to root 48, right? So x is equals to root 48 by root 3. That means यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो रूट 3 इंटू रूट 48 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज रूट 3 इंटू 48 बाय 3. सो 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18. सो आंसर इज 16 रूट 3 इज योर आंसर. हमारे पास ये यूनिट्स दे रखी हैं किसमें, सेंटीमीटर में. सो इट विल बी 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर of this question. Let's move on the third question, question number 3, that is in a figure, as you can see the figure is given to us, angle CAB. Let's make the figure first. This is center O. So this is the diagram, right? This angle is 110 and this is 40 degree. This is X. Okay, A, B and C. So we have to find the value of x. As you know that हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, that is angle formed on the center of the circle is twice the angle formed on the circle. सर्कल पे किसी भी सर्कल के पार्ट पे, that is on the circumference of the circle. That means ये वाला एंगल हमारा जो क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस पे ये वाले एंगल का ट्वाइस होगा. दैट मीन्स एंगल सी क्या हो गया, x बाय 2, राइट. अब हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी. ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज 40 प्लस 110 प्लस x बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. सो x बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री, दैट इज 5 6 7 8, दैट इज 30 डिग्री. x बाय 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन द गिवन फिगर, हमें दी हुई है फिगर, दैट इज एक रोम्बस दिया हुआ है हमें. दिस इज योर रोम्बस और ये हमारे पास डायगोनल्स दे रखे हैं. लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. Okay, so this is A, B, C and D. This is y degrees, this is x degrees and this is 40 degrees, right? As you know that, first of all what we have to find is, we have to find the value of x and y. You already know that the diagonals bisect at 90 degree. Bisect करते हैं 90 degree पे, that means ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री. तो अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल की, इस पॉइंट को O ले लेते हैं, दैट इज AOB. तो हमारे पास क्या आ गया, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्रीज. ठीक है, यहाँ से इक्वल टू 180 डिग्री. तो x डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 9 एंड 40 130. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, राइट. तो x की वैल्यू 50, ऑप्शन में अगर हम चेक करें x की वैल्यू 50, तो सिर्फ हमारे पास डी ऑप्शन है. सो आंसर नंबर डी, दैट इज x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री इज योर आंसर. बट हमें तो y की वैल्यू भी निकालनी है. तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एज यू नो दैट ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है. दैट मीन्स एंगल अपोजिट टू ए बी, दैट इज ए बी के सामने कौन सा एंगल है, y डिग्रीज, और
AD के सामने कौन सा है, x डिग्रीज, मतलब y डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्रीज, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 50 है, y की वैल्यू भी 50 है, दैट इज ऑप्शन नंबर D is your correct answer. So let's move on the question number 5th. Question number 5th says that 4 power x minus 4 power x minus 1 is equals to 24. We have to find the value of 2x power x. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो 4 power x minus 4 power x into 4 पावर -1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 24। बट 24 का अगर मैं एलसीएम लूँ, दैट इज 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। दैट इज, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 24 को लिखेंगे 4 इंटू 3 2 6 इंटू 6। तो अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो 4 पावर x कॉमन आ रही है, क्या बचेगा, 1 माइनस 4 पावर -1, ठीक है, सही बोला मैंने। तो 4 पावर x 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6, ठीक है। 4 पावर x 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6। 4 पावर x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू 4/4 माइनस 1 इज 3, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2 इंटू 2। तो हमारे पास क्या हमने वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x की पावर x, 2x की पावर x। तो अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बट ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कैन वी कन्वर्ट इट इनटू 2, दैट इज इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 होल पावर 2 इंटू 2। सो दिस इज 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, दैट इज 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 1। सो 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 2x की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x की पावर x, दैट मीन्स 2 इंटू 5/2 की होल पावर 5/2, दैट इज 5 की पावर 5/2, मतलब 5। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 5 का रूट, दैट मीन्स रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा। 5 कॉमन ले लो, दैट इज 5, एक 5 यहाँ से कॉमन आएगा, एक यहाँ से आएगा, 5 5 25 और रूट 5 बचा, तो 25 रूट 5 सेंटीमीटर्स, 25 रूट 5 इज योर आंसर। तो ये ऑप्शन में है, चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक एडजॉइनिंग फिगर ऑलरेडी हमें गिवन है। क्या फिगर है हमारे पास, दैट इज ABC, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर दिया हुआ है D, ठीक है। हमें दिया हुआ है एंगल B एंगल C के इक्वल है। हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कौन कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, एज यू नो दैट AD कॉमन है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, एंड दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल साइड, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में से कितनी लाइंस पास कर सकती हूँ मैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी। तो हमारे पास मैनी का ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्या वो जीरो होगी, क्या एनी नेचुरल नंबर, नॉट डिफाइंड और 1। सिंस जो जनरल फॉर्म होती है एक पॉलिनोमियल की, दैट इज an x की पावर n, वेयर an जो है वो जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि। सो सिंस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज नॉन नेगेटिव इज नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब हमें पता ही नहीं है वैल्यू कब आएगी जीरो, कौन से पॉइंट पे। सो जो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, हम इसे बता नहीं सकते, दैट इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, 2√2 माइनस √3, इसको सिंपली रैशनलाइज करना है। एक बात बताओ, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है हमें कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अगर √2 माइनस √3 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, दैट इज प्लस वाला, दैट इज 2√2 प्लस √3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज द डायगोनल AC एंड BD, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले से।
सो दिस इज योर पैरेललोग्राम ए बी सी डी. डायगोनल बी ए सी जो है, डायगोनल ए सी एंड बी डी जो है, डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. डी ए सी ये वाला एंगल जो है वो दैट इज 32 डिग्रीज एंड ए ओ बी दिस एंगल इज 70 डिग्री. हमें बताना है एंगल डी बी सी ये वाला एंगल बताना है हमें. ये एंगल कैसे बता सकते हैं? दैट इज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. एज यू कैन सी दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो ये क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, राइट. दैट मीन्स अगर ये 32 तो ये भी क्या होगा? 32. ठीक है. और लीनियर पेयर से अगर ये 70 है, हमारा ए ओ बी 70 है, तो बी ओ सी क्या होगा? 180 माइनस 70 दैट इज 110. ठीक है. तो इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्राइंगल में, दैट इज बी ओ सी ट्राइंगल में. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. बी ओ सी कितना है? बी ओ सी इज 110 डिग्रीज प्लस ओ बी सी हमें निकालना है और ओ सी बी कितना है? 32 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ओ बी सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 142 दैट इज 38 डिग्री. सो ओ बी सी कितना आ गया? 38 डिग्रीज. So option number 38 that is option number B is your correct answer. So next question is question number 11. Question number 11 is that is x power minus 2 is equals to 64. तो हमें x की वैल्यू x पावर 1/3 प्लस x की वैल्यू 0 इक्वल वैल्यू बतानी है हमें. ठीक है. तो x की पावर माइनस 2 जो है वो 64 के इक्वल है. मतलब 1/x² की वैल्यू क्या हो गई? 64. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/64. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 स्क्वायर दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 1/8. ठीक है. सो एक्स इज इक्वल्स टू 1/8. तो हम अगर वैल्यू पुट करें तो 1/8 होल पावर 1/3 प्लस एक्स पावर 0 एनीथिंग पावर 0 इज 1. तो 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1. अब 8 किसका रूट क्यूब रूट किसका होता है? 2 का. तो 1/2 प्लस 1. सो दिस इज 2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. So 3/2 that is option number C is your correct answer. Question number 12 की तरफ चलेंगे. That is 2x minus 5y is equals to 7. हमें बताना है ये क्या है? इसका नो सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशंस है. तो अगर हमें पता है इक्वेशंस, हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और कोई गिवन वैल्यू नहीं है इसमें x और y की. तो अगर x और y की वैल्यू नहीं पता तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी x की वैल्यू डाल दें उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट. दैट मीन्स हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y भी आ जाएगी. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑलरेडी डायग्राम गिवन है बट मैं डायग्राम इसी में ही एडिट करूंगी. ठीक है. दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगी. इसको 1 इसको 2 ले लेते हैं. ठीक है. हमें ए सी डी की वैल्यू निकालनी है. अगर हम बात करें एंगल बी ए सी प्लस एंगल, इसको हम पॉइंट एम ले लेते हैं, दैट इज एंगल ए सी एम इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स दैट मीन्स बी ए सी कितना है? 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री दैट इज 70 डिग्री. ठीक है. एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री. सिमिलरली नीचे वाली बात करेंगे, सी एम पैरेलल है डी ई के. सो एंगल 2 प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री दैट इज 30 डिग्रीज. ठीक है. मतलब एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 70 प्लस 30 दैट इज 100 डिग्रीज. तो 100 डिग्रीज किसकी वैल्यू आ गई? ए सी डी. और इसी की वैल्यू बतानी थी 100 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज 32 पावर 1/5 प्लस माइनस 7 पावर 0 प्लस 64 पावर 1/2. एज यू नो दैट 32 क्या होता है? 2 की पावर 5. ठीक है. उसकी होल पावर क्या? 5 प्लस एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1 प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का. तो 8 स्क्वायर होल पावर 1/2. 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल. सो 2 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 11. सो 11 इज योर आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है. x प्लस वाई
तो अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू देखें, उससे पहले थोड़ी सी देखें कि सी डी क्या है, एक आर्क है, इसी के ऊपर एंगल ए सी डी बन रहा है और इसी के ऊपर एंगल ए बी डी बन रहा है. दैट मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, एंगल्स ऑन सेम आर्क पे है ये एंगल्स. दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ये भी एंगल क्या बन जाएगा, y. और ये अगर 90 है, दैट मीन्स सी पी बी 90 है, तो अंदर वाला सी पी ए भी 90 होगा. तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए पी सी की, तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री. तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 इज द एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज. एक्स एक्सिस पे एब्सिसा पॉइंट कौन सा होगा. अगर हम एब्सिसा की बात करें, कोई भी नंबर्स हो सकता है. एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस कैन बी एनी नंबर, विल ऑलवेज बी, देखो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है. अगर हमें ऑर्डिनेट की बात करी होती तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होता, ऑर्डिनेट इस केस में क्या होता, 0, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस की बात हो रही है. तो एक्स पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस केस में जो हमारी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होती है, 0. मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी. एब्सिसा की क्या हो सकती है, एब्सिसा की कुछ भी हो सकती है. ठीक है, दैट इज एनी पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे. कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, x को y की टर्म्स में लिख देते हैं, बट ऐसा केस नहीं करना. उन्होंने y को x की टर्म में पूछा है, तो मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी. मतलब -2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5x, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5x बाय -2. तो नेगेटिव है तो थोड़ा साइन चेंज हो जाएंगे. 5x माइनस 7 अपॉन 2, तो 5x माइनस 7 अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. p ऑफ -1 की बात करेंगे, -1 होगा 5 ऑफ -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, दैट इज -5 -4, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, +3. सो दिस विल बी -5 -4 +3, दैट इज -9 +3, दैट इज -6. सो -6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन क्या कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है. ठीक है, AC और BD जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. ठीक है, एक स्क्वायर है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. ठीक है, ABCD, एंगल AOB जो है वो 90 है. ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे. ठीक है, अगर हम रीजन की बात करते हैं, जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये तो बिल्कुल सही बात है. सो मतलब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असर्शन एज वेल एज रीजनिंग, इज ऑलवेज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे. √3 इज एन इरैशनल नंबर. यस, इट इज एन इरैशनल नंबर. रीजन इज दैट द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरैशनल नंबर. अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई नंबर, तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरैशनल होता है. देख लेते हैं. अगर हम √2 की बात करें, ठीक है, √3 की बात करें, अगर √4 की बात करें, 4 तो स्क्वायर होता है. √5 की बात करें, √7 की बात करें, ठीक है, √9 की बात करें, नो, √10 की अगर हम बात करें, और 10 तो यस, इट इज एन इरैशनल नंबर. मतलब सही बात बोल रहे हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरैशनल होते हैं. सो assertion is also correct, reason is also correct. So option number A, that is both assertion and reason are correct and it is the correct explanation of assertion. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात होगी. आई होप सेक्शन A बिल्कुल क्लियर होगा आप सबको. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन B के साथ. आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.